हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस मैथ्स। लास्ट वीडियो रे नंबर 3 रो थर्ड बीट पंद हमें सॉल्व कर देछंती। नाउ स्टार्ट करिया फोर्थ बीट। तो क्वेश्चन नंबर 3 थिला टेस्ट वेदर द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ऑन द सेट्स स्पेसिफाइड। तो हमको सेट गिवन देछि, रिलेशन गिवन देछि, हमें चेक करिया रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव कंडीशन। तो फोर्थ बीट रो रिलेशन गिवन देछि m by n is a power of 5. यदि ये कंडीशन satisfy कला then m इंटा belongs to relation. तो z minus 0 कला हमने set of all non-zero integers. तो यार means है set of all non-zero integers. तो रिलेशन मध्ये रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम z minus 0 to z minus 0. तो ये हमारा रिलेशन ऑन z गिवन देछि और रिलेशन का कंडीशन देछि m by n is a power of 5. तक यूज करिए हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करिवा। तो रिफ्लेक्सिव रे चूज करियो सिंगल एलिमेंट लेट m belongs to z minus 0. तो मु यूज करछि m belongs to z minus 0. Now m by m equals to 1. So 1 equals to 5 to the power 0. So this implies m by m is a power of 5. यदि m by m is a power of 5 है तो this implies m comma m belongs to relation for all m belongs to z minus 0. The m comma m belongs to relation means the relation is a reflex relation. So it is reflexive. So R is reflexive. Then symmetric. The symmetric में let नहीं चाहिए, let m n belongs to z minus 0. हमारा सेट अच्छे z minus 0. तो हमारा सिमेट्रिक कंडीशन थी ला a related to b implies that b related to a. तो हमें स्टार्ट करिएगा m related to n means m comma n belongs to relation. यदि a कंडीशन satisfy कर जे तो this implies m by n is a power of 5. तो हम प्रूफ करियो रछि n comma m टा belongs to relation. Implies that m by n equals to 5 to the power k. So this implies n by m equals to 1 by 5 to the power k. Implies that n by m equals to 5 to the power minus k. So this implies n by m is a power of 5. So this implies n comma m belongs to relation for all mn belongs to z minus 0. तो हमारा n comma m belongs to relation means must start with mn belongs to relation, proof है गला nm belongs to relation, so R is symmetric. Then transitive check करिएगा। तो ट्रांजिटिव में लेट नहीं चाहिए, लेट m n p थर्ड एलिमेंट नहीं चाहिए belongs to z minus 0. तो हमारा ट्रांजिटिव कंडीशन थी ला a related to b, b related to c implies that a related to c. तो मैं a related to b स्टार्ट करियो तो mn belongs to relation. तो this implies m by n is a power of 5. So this implies m by n equals to 5 to the power k1. La equation number 1. Then use करिएगा n comma p belongs to relation. So this implies n by p is a power of 5. So this implies n by p equals to 5 to the power k2. La equation number 2. Now equation 1, equation 2 को मल्टीप्लाई कर दबा from 1 into m by n into n by p equals to 5 to the power k1
into 5 to the power k2. तो n cancel है जीवो, तो this implies m by p equals to 5 to the power k1 plus k2, or this implies m by p equals to 5 to the power let k3, where k3 equals to k1 plus k2. So this implies 5 to the power k3 अच्छी मने definitely m by p is a power of 5. The m by p is a power of 5 means m comma p belongs to relation for all m n p belongs to z minus 0. तो mp belongs to relation means हमारा mn belongs to relation थिला, np belongs to r थिला, तो mp belongs to r मिला माने belongs to relation, so it is transitive. तो हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है. तो आंसर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. Fifth bit, relation given that mn is the element relation such that mn is divisible by 2. The m into n is divisible by 2, then mn belongs to relation. Or relation defined on Z. The relation defined on Z means Z to Z. तो मतलब relation रा condition देची mn is divisible by 2. तो हमें reflexive, symmetric, transitive check करियो. तो reflexive, the reflexive रे let नहीं चाहिए, let m belongs to Z. तो हमें चेक करियो करना m is related to m. So m into n plus m into m कर ले. तो this is equal to m square. तो m square is divisible by 2 is not true for all m belongs to Z. तो m square तुम्हारा always divisible by 2 होगानी. तो केवे केवे divisible by 2 है जीवा, but केवे केवे भी divisible by 2 होगानी. For example, when m equal to 3, तो m equals to 3 यूज करें. तो m into m equals to 3 into 3 equals to 9. तो 9 is divisible by 2 is a false statement. तो 9 is not divisible by not divisible by 2. So m comma, this implies m comma m definitely not in the relation for all m belongs to Z. So R is not reflexive. हम रिफ्लेक्सिव रे चेक करथिला mm टा belongs to R कि not belongs to R. तो not belongs to R ला माने not reflexive. Then symmetric. The symmetric let नहीं चाहिए m n belongs to Z. तो हमारा symmetry condition A related to B implies that B related to A. तो हमें start करेगा m n belongs to relation. तो this implies m into n is divisible by 2. mn divisible by 2 means n into m is also divisible by 2. The result is since mn equals to nm for all mn belongs to Z. तो मतलब इंटीजर को भी थीटा इंटीजर नहीं जाओ, m into n equals to n into m हवा. यदि nm is divisible by 2 हला, तो this implies n comma m belongs to relation for all mn belongs to Z. तो nm belongs to relation start हेतिला mn belongs to R, proof हेगला nm belongs to R, so R is symmetric. Then check करेगा transitive. तो transitive में let नहीं चाहिए, let m n p belongs to Z. तो A ट्रांजिटिव में A related to B, B related to C, then हमें चेक करेंगे A related to C. तो mn
belongs to R. So this implies m into n is divisible by 2. Second condition, n into n comma p belongs to R. So this implies n into p is divisible by 2. Divisible by 2. So next step re m into p. M into p is divisible by 2 is not true. For all m n p belongs to z. तो मोर m p टा not is divisible by 2 टा always not true. Some cases से true होई पारे, some cases से false होई पारे. For example m equal to मो 3 यूज कर ली, n equals to 2 यूज कर ली and p equals to 5 यूज कर ली. तो तुम्हें चेंज भी करी परिबो. Now m comma n equals to here 3 comma 2 अच्छी. Now check करा 3 into 2 is divisible by 2. 3 into 2 मते 6 मिलला, 6 is divisible by 2. तो ये मोर belongs to R अच्छी. n comma p equals to 2 comma 5. तो 2 into 5 10, 10 is divisible by 2. तो ये condition भी satisfy को अच्छी belongs to R. But m comma p, तो m comma p equals to 3 in 5. So this one 3 into 5. 3 into 5 15. 15 is clearly not divisible by 2. So this implies more m comma p not belongs to R. So mn belongs to R np belongs to R but mp not in the relation. So R is not transitive. तो मतलब रिलेशन कौन मिला ना नॉट रिफ्लेक्सिव मिला, सिमेट्रिक मिला और नॉट ट्रांजिटिव मिला. Number 3 ର 6th bit relation हम given देछि mn is the element relation such that 3 divides m minus n और set देछि 1 2 3 dot dot 10. The relation defined on set A to A. तो मु let नहीं let A be the set 1 2 3 एमती dot 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 10. Relation defined from set A to set A. तो हमको चेक कर अच्छी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव. तो हमको कंडीशन देछि 3 divides m minus n, then mn is the element relation. तो हमें रिफ्लेक्सिव रे one element चूज करिबा. रिफ्लेक्सिव तो रिफ्लेक्सिव रे लेट नहीं करी let m belongs to set A. तो सेट ए कला हमने 1 to 10 को भी नेचुरल नंबर हवा. Since m minus m equals to 0, 0 is divisible by 3. So this implies definitely 3 divides m minus m. So 3 divides m minus m means the m comma m belongs to relation for all m belongs to set A. तो तुम्हें जो दिरे भी नेचुरल नंबर ना वो तार डिफरेंस तो 0 ही आसीबो और 0 तो ऑलवेज डिविजिबल बाय 3 अछि. तो हमने 3 डिवाइड्स m minus m. तो m टा हमारा belongs to relation ला, so it is reflexive. So R is reflexive. Then symmetric. Let m n two elements choose करें from the given set. Given set हमें E यूज कर चंदी. तो mn belongs to A. तो हमारे symmetric रे A related to B implies that B related to A condition check करेगा. तो mn belongs to relation. तो this implies 3 divides m minus n. तो मते प्रूफ करिवार अछि n, m belongs to R. यदि मतलब सिमेट्री प्रूफ करिवार अछि तो 3 divides n minus m. तो गोटे माइनस तुम्हें कॉमन नहीं जीवो. तो 3 divides minus of n minus m means 3 divides n minus m.
अरे माइनस टा हमें रिमूव करले भी सेटा डिविजिबल ही हबो यदि माइनस n माइनस m इज डिविजिबल बाय 3 अछि तो n माइनस m भी डिविजिबल बाय 3 हे जेबो तो दिस इंप्लाइज n comma m belongs to relation for all mn belongs to set A तो हमरा mn belongs to R थिला nm belongs to R हेला so it is symmetric so R is symmetric then हमें ट्रांजिटिव चेक करिवा तो ट्रांजिटिव रे हमें ऑलवेज करना 3 एलिमेंट्स बिलोंग्स टू गिवन सेट चूज करिवा तो लेट m n and p belongs to set A तो ट्रांजिटिव कंडीशन थिला A related to B B related to C then A related to C हैला माने ट्रांजिटिव तो A related to B माने हमें m n belongs to relation यूज करिवा तो दिस इंप्लाइज हमारा 3 डिवाइड्स कंडीशन अछि 3 डिवाइड्स m minus n तो दिस इंप्लाइज m minus n is divisible by 3 तो m minus n equal to में यूज करिवा 3 into k1 द फर्स्ट इक्वेशन तो a related to b में निकला मैं यूज कर देछन देन b related to c माने n comma p belongs to relation तो दिस इंप्लाइज 3 डिवाइड्स n minus p तो n minus p is divisible by 3 so this implies n minus p equal to 3 into k2 equation number 2 the next step is adding equation 1 into the m minus n plus n minus p equals to 3 into k1 plus 3 into k2 n cancel ejebo so this implies m minus p equals to 3 into k1 plus k2 or this implies m minus p equals to 3 into k3 where k1 plus k2 equals to k3 so this implies m minus p is divisible by 3 मिल so this implies 3 divides m minus p the 3 divides m minus p अछि so then m comma p belongs to relation for all m n p belongs to set A तो हमरा mn belongs to R अछि np belongs to R मिलला then mp belongs to R मिलला so R is transitive तो हमको रिलेशन रिफ्लेक्सिव मिलला रिलेशन सिमेट्रिक मिलला रिलेशन ट्रांजिटिव मिलला तो आंसर ला रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव Number 4 list the members of the equivalence relation defined by the following partitions तो हमको equivalence relation रो elements find करिया छी माने मते relation find करिया अछि on the set x equal to 1 2 3 4 also find the equivalence classes of 1 2 3 and 4 तो हमको दीटा पार्ट करिया छी इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड करिवा एंड इक्विवेलेंस क्लासेस हमको फाइंड करिया छी तो हमको ऑलरेडी पार्टीशंस गिवन दी छी तो ऑलरेडी मो थ्योरी डेटा एक्सप्लेन करि सर छी तो पार्टीशन रो हमको रिलेशन बाहर करिया छी therefore the equivalence relation is तो 1 अच्छी पार्टीशन 1 सबसेट अच्छी तो 1,1 यूज करिवो तो सेकंड रो यूज करिवो 2,2 बट जो 3 4 अच्छी 2 एलिमेंट्स तो 3 4 रो कार्टेशियन प्रोडक्ट में फाइंड करिवो तो 3 4 रो कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करले 3 3 एसीवो देन 3 4 एसीवो देन 4 3 एसीवो एंड एसीवो 4 4 तो मते इक्विवेलेंस रिलेशन रो एलिमेंट्स मिली गला ये ला 4 ये ला 2 6 एलिमेंट्स मते इक्विवेलेंस रिलेशन मिली गला and the equivalence classes are तो इक्विवेलेंस क्लासेस केमती फाइंड करिवो जो सबसेट 1 अछि तो 1 को इक्विवेलेंस क्लास कर देबो दिस इक्वल टू फर्स्ट क्लास 2 हमरो सबसेट अछि दिस अंडर 2 सेकंड क्लास 3 4 अछि थर्ड क्लास अछि म 3 4 थर्ड सबसेट अछि तो 3 मोर
थर्ड क्लास इक्वल टू 4 भी यूज करी परिबा और इक्वल टू सबसेट ला 3, 4 तो हमको इक्विवेलेंस क्लासेस मिलला 1 ये 2 ये 3, 4 डेटा इक्वल जेमती हमें फर्स्ट बिट सॉल्व कले सेकंड बिट थर्ड बिट भी एग्जैक्टली सेमती सॉल्व करिवा तो सेकंड बिट अछि 1 2 3 4 तो मते के इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड करे अछि therefore the equivalence relation is तो 1 2 3 अछि तो 1 2 3 रा कार्टेशियन प्रोडक्ट हमको इटी 9 एलिमेंट्स मिल जेबा माने 1 रो स्टार्ट करिबा 1 1 देन 1 2 देन 1 3 देन 2 रो स्टार्ट करिबा 2 1 2 2 देन 2 3 देन 3 रो स्टार्ट करिबा 3 1 3 2 देन असीबा 3 3 और 4 से डिफरेंट सबसेट अछि तो 4 4 ना 1 एलिमेंट तो मते मिली गला इक्विवेलेंस रिलेशन तो मुझे फाइंड कर लिए 9 एलिमेंट्स तो एक्चुअली तुम्हें 1 2 3 रा कार्टेशियन प्रोडक्ट बाहर कर दो तुमको एलिमेंट्स मिल जेबा तो यार कार्टेशियन प्रोडक्ट हमको मिलला 9 एलिमेंट्स ये ला तुम्हारा 10th एलिमेंट ना मते पे इक्विवेलेंस क्लासेस फाइंड करे अछि एंड the equivalence classes are the 1 2 3 1 set रे अछि तो 1 equals to 2 equals to 3 यूज कर दबा और दिस इक्वल टू 1 2 3 4 टा सेकंड सबसेट अछि तो 4 1 प्लस ए जीवो तो दिस इक्वल टू 4 तो ये हमारा इक्विवेलेंस क्लासेस तो फर्स्ट बिट हे गला सेकंड बिट हे गला तो तुम थर्ड बिट सॉल्व करिवो तो एग्जैक्टली सेमती सॉल्व करिवो थर्ड बिट रे पार्टीशन गिवन दिछि 1 2 3 4 तो इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड करिवो तो एठी कोन करिवो ना इक्विवेलेंस रिलेशन रे बस यारो कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करिवो therefore the equivalence relation is तो यार कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करला हमको 4 into 4 16 एलिमेंट्स मिलेगा तो 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 then 3 1 रो स्टार्ट करिवो 3 1 3 2 3 3 3 4 then 4 1 4 2 4 3 4 4 तो हमको इक्विवेलेंस रिलेशन मिल गया एंड द इक्विवेलेंस क्लासेस class is तो इट 1 आसीबो तो 1 equals to 2 equals to 3 equals to 4 आसीबो and all are in the same subset अछि this is 1 2 3 4 तो हमको इक्विवेलेंस रिलेशन भी मिल गला इक्विवेलेंस क्लास भी मिल गला तो इजीली तुम्हें पार्टीशन रो इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड करि परिबा और इक्विवेलेंस क्लासेस भी तुम्हें इजीली फाइंड करि परिबा Number 5, show that if R is an equivalence relation on X, so if R is an equivalence relation on X, then prove that domain of relation equal to range of relation equal to X. So we let R is an equivalence relation on X. तो हम लेट नहीं R is an equivalence relation और equivalence अच्छी मैंने definitely R is reflexive, R is symmetric, and R is transitive. The reflexive, symmetric, transitive condition definitely satisfy करती हो तो this implies R is reflexive. यदि R reflexive अच्छी तो this implies x, x belongs to relation
for all x belongs to capital X. Reflexive अच्छी माने x टा related to x होती है माने x belongs to R आसीबो. तो this implies definitely domain of relation equal to range of relation equal to capital X माने set x ही होती है वो. ला proved. Number 6. Give an example of a relation which is reflexive, symmetric but not transitive. तो एमती गोटे एग्जांपल दबा रिलेशन रिफ्लेक्सिव थीबो, सिमेट्रिक थीबो बट नॉट ट्रांजिटिव. एमती तो डिफरेंट एग्जांपल्स अछि माने गोटे स्टूडेंट रो आंसर गोटे हले तो आ गोटे रो डिफरेंट भी हे पारे. तो सॉल्यूशन अगे लेट a इक्वल टू मु सेट चूज करली 1 2 3 रिलेशन डिफाइन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए. तो तुम्हें नीचे डिफाइन करियो सेट ए टू सेट बी नबो कि सेट ए टू सेट एन एली. तो रिलेशन रो एलिमेंट्स तो मते रिफ्लेक्सिव अछि तो सेट रे 1 2 3 अछि तो रिफ्लेक्सिव मते जरा चेक करियर अछि और प्रूफ करियर अछि. तो डेफिनेटली मोर 1 1 थियो दरकार 2 2 थियो दरकार एंड 3 3. यदि मोर सेट रे 1 अछि तो एटी रिलेशन रे 1 1 रहबो. तो एटी 2 अछि तो 2 2 रहबो. 3 अछि माने 3 3 रहबो. यदि 1 1 2 2 3 3 ला तो डेफिनेटली रिलेशन टा रिफ्लेक्सिव हबो. तो मते एमटी भी एग्जांपल देवर अछि कोना रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव. तो एटी एंड कला माने मोर रिफ्लेक्सिव हे जेबो, सिमेट्रिक हे जेबो, नॉट ट्रांजिटिव भी हे जेबो. बट मते नॉट ट्रांजिटिव रो एग्जांपल देवर अछि. तो सिमेट्रिक में मु 1 2 ऐड कली, 2 1 ऐड कली, 1 3 ऐड कली और 3 1 ऐड कली. तो ए एलिमेंट ऐड कला परे 1 2 2 1 अछि, 1 3 3 1 अछि. तो ये तुम्हारा r इक्वल टू r इनवर्स हे जीवो माने मोर ए 3 एलिमेंट्स अछि माने रिफ्लेक्सिव हे जाउछि और बाकी जहां भी एलिमेंट्स मोर रखिछि तो तुम्हारा सब सिमेट्री कंडीशन सैटिस्फाई करछि माने रिलेशन इक्वल टू r इनवर्स हे जाउछि. बट ट्रांजिटिव होनी कोन पे ना 2 1 अछि, 1 3 अछि, 2 3 ए सी हमर 2 3 हे गेला. तो 2 3 देखो तुम रिलेशन रे कोठी नाही. तो मोर रिलेशन तो रिफ्लेक्सिव हे गेला, रिलेशन सिमेट्रिक हे गेला. रीजन ला r इक्वल टू r इनवर्स बट रिलेशन टा नॉट ट्रांजिटिव अछि. तो नॉट ट्रांजिटिव अछि माने त रीजन करना 2 1 बिलोंग्स टू r अछि, 1 3 belongs to R अछि but 2 3 so this is not in the relation. यदि a एलिमेंट न थियो त डेफिनेटली हमरो रिलेशन टा नॉट ट्रांजिटिव हे जीवो. तो बट तुम जहां भी एलिमेंट चूज करिवो ऑलवेज करना एक रसे अरे एक रसे बाहर कला माने मते एटी 9 एलिमेंट्स मिलिवो कने सेट 1 2 3 अछि, 1 2 3 अछि, 1 2 3. तो मुसे 9 एलिमेंट्स टू बस एलिमेंट चूज करिछि. तो तुम से 9 एलिमेंट्स रो एलिमेंट चूज करके एग्जांपल दबो. सेकंड बिट अछि रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव अछि बट नॉट सिमेट्रिक. तो सेमती में आगे सेट a इक्वल टू मु यूज कर ली 1 2 3 यूज कर ली. रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट a टू सेट a यूज कर ली. तो रिलेशन एलिमेंट तो हमारा रिफ्लेक्सिव अच्छी माने 1 1 1 2 3 अच्छी तो तुम्हें 1 1 2 2 3 3. तो आगे ये 3 एलिमेंट्स रखी देले तुम्हारा रिफ्लेक्सिव हे गला. देन मते ट्रांजिटिव भी करियर अछि बट नॉट सिमेट्रिक. यदि मु 1 2 ऐड कली तो मु 2 1 ऐड करिबनी. तो 2 1 ऐड न कली मोर नॉट सिमेट्रिक. तो ए कंडीशन भी सैटिस्फाई कला, ए कंडीशन हे गला. तो यदि मु 80 ब्रैकेट एंड कर देबी तो तुम चेक करिवो तुम्हारा रिलेशन टा भी ट्रांजिटिव हो. तो ट्रांजिटिव पे हमें कौन चेक करंदे ना a रिलेटेड टू b रिलेटेड टू c implies that a related to c. यदि a not related to c है तो not transitive. तो सेमती कंडीशन आसीबनी तुम चेक करो ईच एलिमेंट को यूज करके ट्रांजिटिव हे जीवो. तो दिस ऑन ला एग्जांपल ऑफ ए रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक. देन थर्ड बिट सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव
but not reflexive. तो मते एमती एग्जांपल दबर अछि सिमेट्रिक थिबो ट्रांजिटिव थिबो बट नॉट रिफ्लेक्सिव. तो सेमती कि लेट नै जिवो लेट a इक्वल टू सेट तुम निजे डिफाइन करिवो मु 1 2 3 नोची तो तुम चाहे चेंज करि परिवो. तो रिलेशन डिफाइन फ्रॉम सेट a टू सेट a. तो रिलेशन रो एलिमेंट मोर नॉट रिफ्लेक्सिव अछि माने 1 2 3 अछि तो 1 1 2 2 जदि मु 3 3 ऐड कर देबी तले मोर रिलेशन टा रिफ्लेक्सिव हे जिवो. तो मु जानि के 3 3 ऐड करनी तो नॉट रिफ्लेक्सिव हे गला. तो इटी यदि मु ब्रैकेट एंड कर देबी तो रिलेशन टा सिमेट्रिक भी हे जिवो. तुम चेक कर r इक्वल r इनवर्स अछि इटी भी तुमरो ट्रांजिटिव होबो केने तुमरो a रिलेटेड टू b रिलेटेड टू c a रिलेटेड टू c कंडीशन सैटिस्फाई करिवो. और नॉट ट्रांजिटिव तुमरो कोन पे होबनी ना a रिलेटेड टू b रिलेटेड टू c a नॉट रिलेटेड टू c एमती किछि एलिमेंट्स में दिबनी तो हम तुमरो ट्रांजिटिव अछि. तो रिलेशन टा रिफ्लेक्स नॉट रिफ्लेक्सिव अछि सिमेट्रिक अछि एंड ट्रांजिटिव अछि. फोर्थ बीट reflexive but neither symmetric nor transitive. तो हमको एमती एग्जांपल दबर अछि रिफ्लेक्सिव थिबो बट सिमेट्रिक होनो थिबो और ट्रांजिटिव भी होनो थिबो. तो मु लेट नै गेले लेट a इक्वल टू 1 2 3 रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट a टू सेट a. तो रिलेशन रो एलिमेंट तो हमरा रिफ्लेक्सिव अछि माने हमको 1 1 2 2 एंड 3 3 तो पक्का हमको ये रखियर अछि तो रिफ्लेक्सिव हे गला. बट मते नॉट सिमेट्रिक प्रूफ करियर अछि तो मु 1 2 ऐड कली तो 2 1 ऐड कला माने मोर कोन हबो न सेटा तुमरो सिमेट्रिक हे जीवो. तो 1 2 ऐड कली देन 2 3 ऐड कर देली. तो 1 2 ऐड कली 2 3 ऐड कली ना पे चेक करा तो तुमरो एटा नॉट सिमेट्रिक अछि. रिफ्लेक्सिव तो हमरो ऑलरेडी हे जाय छी कि 3 एलिमेंट्स अछि रिफ्लेक्सिव हे गला. 1 2 अछि 2 1 नै तो नॉट सिमेट्रिक भी हे गला. तो 1 2 अछि 2 3 अछि 1 3 देखो 1 3 को उठी नहीं तो हमन तुमरो नॉट ट्रांजिटिव भी हे गला. तले मोरो नॉट सिमेट्रिक होबा रीजन कोन ना 1 2 अछि बिलोंग्स टू r बट 2 1 नॉट इन द रिलेशन तो माने मते नॉट सिमेट्रिक मिलला. तो ट्रांजिटिव रे 1 2 अछि बिलोंग्स टू r 2 3 अछि बिलोंग्स टू r but 1 3 अछि 1 3 not belongs to r अछि त माने मते not transitive मिलला. तो दिस वाला एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्सिव neither symmetric nor transitive. फिफ्थ बीट अछि ट्रांजिटिव बट neither reflexive nor symmetric. त हम एमती ଗୋଟେ एग्जांपल दबा ट्रांजिटिव थिबो नॉट रिफ्लेक्सिव होतीबो नॉट सिमेट्रिक होतीबो. तो लेट a इक्वल टू 1 2 3 रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट a टू सेट a. तो मु रिलेशन रे यूज करी एलिमेंट तो नॉट रिफ्लेक्सिव अछि माने मु 1 1 यूज करी और 2 2 यूज करी. यदि मु 3 3 यूज कर दे मोर रिफ्लेक्सिव हे जिवो तो मु 3 3 यूज करलेनी त माने मोर नॉट रिफ्लेक्सिव हे गला. बट मते नॉट सिमेट्रिक भी प्रूफ करियर अछि माने एग्जांपल दबर अछि नॉट सिमेट्रिक तो मु 1 2 ऐड कली तो मु 2 1 ऐड करनी त माने मोर रिलेशन टा नॉट सिमेट्रिक. 3 3 नहीं तो नॉट रिफ्लेक्सिव 2 1 नहीं तो नॉट सिमेट्रिक. यदि मु 80 एंड कर देबी ए रिलेशन टा मोर ट्रांजिटिव हे जिवो. तो मु चेक करो ट्रांजिटिव रो 81 अछि तो यार फर्स्ट एलिमेंट 1 तो 1 2 तो इटसेल्फ अछि तो यार 2 अछि आउ कोठी तुमरो फर्स्ट एलिमेंट 2 नहीं तो ये भी तुम्हारा ट्रांजिटिव कंडीशन सैटिस्फाई गला. तो 82 अछि यार फर्स्ट एलिमेंट 2 अछि तो 1 2 तो इटसेल्फ अछि तो ये तुम्हारा ट्रांजिटिव कंडीशन सैटिस्फाई गला. नॉट रिफ्लेक्सिव गला कोन पे ना 3 3 नहीं और नॉट सिमेट्रिक गला 1 2 अछि बट 2 1 नहीं और ट्रांजिटिव कंडीशन सैटिस्फाई को अछि. तो दिस वन ला एग्जांपल ऑफ ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड नॉट सिमेट्रिक. Then sixth bit, an empty relation.
तो यार तो मु डेफिनेशन एक्सप्लेन करला बेले ऑलरेडी गोटे दे सारी तो आ गोटे भी एग्जांपल दोची लेट नहीं गेले n इक्वल टू सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स relation defined from natural number to natural number तो relation रो element usually ab such that a plus b equal to -1 condition देली where a b both are belongs to natural number अरे केबे भी दीटा नेचुरल नंबर ऐड हेले -1 होबनी त माने याको सॉल्व कला परे मते मिलिबो कणना डेफिनेटली एम्प्टी रिलेशन और दिस इक्वल टू 5 तो दिस ओनली एग्जांपल ऑफ एम्प्टी रिलेशन Seventh bit, a universal relation. The universal relation अच्छी let negally n be the set of all natural numbers. Set of all natural numbers. Relation defined from n to n usually. Our relation condition the AB is the element relation such that A plus B greater than 0 for all A B belongs to natural number. तो तुम्हारा A plus B A B तो हमारा natural अच्छी तो दीटा natural ऐड है हमने always तुम्हारा greater than 0 होगा तो तुम्हें जो भी element choose करीबा domain set रो तो या को solve करला पर तुम्हारा R equal to definitely A cross A ऐसे जीवा therefore R is a universal relation. Number 7. Let R be a relation on X. Relation defined on X means X to X. If R is symmetric, a symmetric condition देची X related to Y implies that Y related to X. If it is also transitive, the transitive condition देची X related to Y, Y related to X implies that X related to X. So whenever a relation is symmetric and transitive, then it is also reflexive. तो statement देची whenever a relation is symmetric and transitive, then it is also reflexive. हमें symmetric अच्छी transitive अच्छी माने reflexive होगा. The question रा condition. What is wrong in this argument? अरे गोटे relation टा symmetric हैला, transitive हैला, तो relation टा always reflexive होगा. एमती किसी माने नहीं. सेटा may or may not be reflexive. तो actually wrong अच्छी करना A part रे wrong अच्छी. Then the relation may or may not be reflexive. तो resolution this argument is wrong because whenever a relation is symmetric and transitive, then the relation may or may not be reflexive. तो जो सिमेट्रिक होची ट्रांजिटिव होची केबे केबे रिफ्लेक्सिव भी हिपरे केबे केबे नॉट रिफ्लेक्सिव हो तो से स्टेटमेंट रो ई पार्ट रे ही रॉन्ग अछि. Number 8. Suppose a box contains a set of n balls but n greater than equal to 4 given देची or denoted by B of 4 different colors. तो may have different sizes. Different sizes में थाई परे color red, blue, green and yellow. Show that the relation are defined on B. तो relation defined on B to B अच्छी and relation equal to given देची both B1 and B2 have the same color then B1 B2 element relation. तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करला माने B1 B2 एलिमेंट रिलेशन बट हमको प्रूफ करियर अछि आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. तो मते इक्विवेलेंस माने रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव प्रूफ करियर अछि. और सेकंड पार्ट अछि हाउ मेनी इक्विवेलेंस क्लासेस कैन यू फाइंड विथ रेस्पेक्ट टू द रिलेशन. आर माने रिलेशन हमको इक्विवेलेंस प्रूफ करियर अछि और इक्विवेलेंस क्लासेस भी फाइंड करियर अछि.
तो मते सेट बी, तो बी इक्वल टू गिवन देछि ए बॉक्स कंटेन्स a set of n greater than equal to 4 given देछि set of n bulbs of 4 different colors. तो मते b set given देछि a box contains a set of n bulbs अछि of 4 different color but n टा greater than equal to 4 एटा हमको given set अछि and अछि relation defined from b to b और रिलेशन रो कंडीशन मते गिवन देछि b1 b2 एलिमेंट ऑफ रिलेशन such that bulbs b1 and b2 have the same color. हमको रिलेशन टा इक्विवेलेंस प्रूफ करियर अछि तो स्टार्ट करिया फ्रॉम रिफ्लेक्सिव. तो रिफ्लेक्सिव रे हमें ऑलवेज करना वन एलिमेंट. तो लेट मु नै गेली b1 बिलोंग्स टू गिवन सेट मोर b अछि b1 बिलोंग्स टू b. तो मते रिफ्लेक्सिव प्रूफ करियर अछि तो माने b1 बिलोंग्स टू r प्रूफ करियर अछि सिंस bulbs b1 and b1 have the same color. तो क्लियरली b1 तो सेम कलर थी वो. तो दिस implies b1 belongs to relation for all b1 belongs to given set. The b1 belongs to r अच्छी so r is reflexive. तो मोर फर्स्ट पार्ट प्रूफ है रिफ्लेक्सिव. देन ला सिमेट्रिक. तो सिमेट्रिक रे हमें कौन प्रूफ करिबा ना a रिलेटेड टू b implies that b रिलेटेड टू a. तो हमने बिगिनिंग रो कंसीडर करिबा b1 b2 belongs to relation प्रूफ करिबा b2 b1 belongs to relation. तो अगे लेट ने जो लेट b1 b2 टू एलिमेंट्स फ्रॉम द गिवन सेट. तो मु स्टार्ट करली b1 b2 belongs to r. तो इटू स्टार्ट करिबा प्रूफ करिबा b2 b1 belongs to the relation. So this implies bulbs b1 and b2 have the same color. Bulbs b1 b2 have the same color means bulbs b2 and b1 have the same color. अरे b1 b2 the same color अच्छी b2 b1 भी the same color होगा. तो this implies b2 comma b1 belongs to relation for all b1 b2 belongs to given set b. तो मु स्टार्ट करली b1 b2 belongs to r प्रूफ है गला b2 b1 belongs to r so r is symmetric. Then transitive. तो ट्रांजिटिव हमें a रिलेटेड टू b रिलेटेड टू c प्रूफ करिबा a रिलेटेड टू c. तो हमको ये 3 एलिमेंट्स दरकार. तो लेट ने जो लेट b1 b2 b3 3 एलिमेंट्स बिलोंग्स टू गिवन सेट. हमर गिवन सेट b अछि तो मु तो 3 एलिमेंट्स चूज करने ली. तो b1 b2 belongs to relation. So this implies bulbs b1 and b2 have the same color. तो b1 b2 belongs to नले then हमें b2 b3 चूज करिबा. Now b2 b3 belongs to r. तो कंसीडर कर ले मते b2 and b3 have the same color.
तो हमको B1 B2 हैव द सेम कलर मिल रहा, B2 B3 भी मिल गया सेम कलर, देयरफॉर B1 रिवॉल्व्स B1 B2 and B3 have the same color. B1 B2 same color, B2 B3 same color. तो हम definitely B1 B2 B3 have the same color. So this implies balls B1 and B3 have the same color. So this implies B1 B3 belongs to relation for all B1 B2 B3 belongs to given set B. तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कला मैंने R is transitive. So R is transitive. तो हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है गला, सिमेट्रिक है गला, ट्रांजिटिव है गला. Hence R is an equivalence relation. तो हमको इक्विवेलेंस प्रूफ करियर थिला, प्रूफ है गला. देन हमको बस इक्विवेलेंस क्लासेस फाइंड करियर अछि. तो एटी हमरा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स अछि, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, माने 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर अछि. तो जेती भी रेड कलर बॉल थीबो तो सी तो रेड कलर क्लास को आसीबो, ब्लू कलर बॉल थीबो सी ब्लू कलर क्लास रह जाइबो, ग्रीन कलर बॉल तुम्हारा ग्रीन कलर क्लास रह जाइबो. तो येलो कलर बॉल सब येलो कलर के हमरो कंडीशन देछि बॉल्स B1 एंड B2 हैव द सेम कलर. तर हम B1 टा येलो नेली तो दा संगे जितने भी येलो कलर थे सी क्लास को ही आसे जीवो. तो हमको नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस मिलला 4 के नंबर ऑफ जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर अछि 4, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस भी हमको 4 ही मिलिबो. तो आंसर केमति लिखिबो नाउ एज देयर आर 4 types of balls, there are 4 equivalence classes with respect to R for the relation. तो हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर थिला, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो. तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस इक्वल टू हमको मिलला 4. नंबर 9, फाइंड द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन x इक्वल टू 1 2 3. तो मते सेट x देछि तार नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 3 अछि 1 2 3. टू फाइंड द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन तो गोटे पॉइंट तुम्हें मन रखिबो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इक्वल टू नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पार्टीशंस. The number of equivalence classes equal to number of distinct partitions. तो आगे हमें distinct partitions वहाँ करेगा सेट रो, then equivalence relation find करेगा. तो solution का हमारा पार्ट ला distinct partitions find करेगा. तो जो x equal to 1 2 3 देची तो हमारा first partition, तो first partition मिला 1, then 2, then 3. ये हमारा first partition. Then second partition आसीबो 1 2 यूज कर ली 1 सेट रे, देन 3 यूज कर ली सेकंड सेट, ये भी होते पार्टीशन. देन लो 1 1 3 यूज कर ली, देन 2 यूज कर ली सेकंड सेट रे, तो ये भी होते पार्टीशन. देन 1 2 3 तो ये भी पार्टीशन ऑफ x अच्छी. देन 1 2 3 तो ये भी हमारा पार्टीशन ऑफ सेट x अच्छी. बस इतना मते रिलेशन मिली थी वो मोर फर्स्ट रिलेशन मिलला 1 अच्छी तो 1 1, 2 सेकंड सबसेट अच्छी तो 2 2, थर्ड सबसेट 3 अच्छी तो 3 3. दिस इज द इक्विवेलेंस रिलेशन. देन सेकंड
ये सेकेंड पार्टीशन रो मते मिली जो सेकेंड इक्विवेलेंस रिलेशन 1 2 अछि तो 1 2 1 2 तार कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर दबो तो 1 1 देन 1 2 आसीबो देन 2 1 नेक्स्ट ला 2 2 और 3 सेकेंड सबसेट अछि तो दिस ला 3 3 येला इक्विवेलेंस रिलेशन देन थर्ड तो थर्ड पार्टीशन रो हमको थर्ड इक्विवेलेंस रिलेशन मिली जीवो 1 3 अछि तार कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करिवा 1 1 1 3 देन 3 1 देन ऐसे जीवो 3 3 और 2 अछि सेकंड सबसेट तो 2 2 ते भी हमरो इक्विवेलेंस रिलेशन ते पार्टीशन रो हमको मिली जीवो फोर्थ इक्विवेलेंस रिलेशन 1 अछि तो 1 1 देन 2 3 अछि 2 2 then 2 3 then 3 2 then ऐसे जीवो 3 3 खाली कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करी कि तुम इजीली इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड करि परिबो लास्ट तो एटी मते करना 1 2 3 1 2 3 तारा कार्टेशियन प्रोडक्ट खाली बस फाइंड करियर अछि तो इक्विवेलेंस रिलेशन आसीबो तो ये 3 * 3 माने 9 एलिमेंट्स आसीबो तो 1 1 आसीबो then 2 2 आसीबो 3 3 आसीबो then 1 2 2 1 1 3 then 3 1 then 2 3 and 3 2 तो तुम्हें इजीली बेटा प्रैक्टिस करके मन रखि परिबो तो 1 2 3 1 2 3 तार कार्टेशियन प्रोडक्ट रो अगे सेट फाइंड कर तो तुमको ए 9 एलिमेंट्स मिलिबो ये सब तुमरो इक्विवेलेंस रिलेशन अछि तो हमको सेट x थीटा 1 2 3 तो बस एथरे मते डिस्टिंक्ट पार्टीशन बाहर करे पड़लो तापरे इक्विवेलेंस रिलेशन इजीली तुमको मिलि जिवो Number 10, let R be the relation on the set R. तो ये तुम्हारा relation भी R given देची, set भी R given देची. तो real number को तो उस notation change करी बनी, बस relation टा डिके मुझे bold कर देवी, तुम्हें मार्क करी वो देश वाला relation. तो relation defined from, तो question पे relation defined from real number to real number. ये relation, ये real number, देश वाला real number. Such that a related to b if and only if a minus b is an integer. So a minus b is an integer, then a related to b. तमने a comma beta belongs to the relation. तो मध्य relation रा condition. The relation रा condition given देची a related to b if and only if a minus b is an integer. बस एक कंडीशन यूज करके हमें रिलेशन टा इक्विवेलेंस प्रूफ करिवा तो सॉल्यूशन रो फर्स्ट स्टेप है रिफ्लेक्सिव तो रिफ्लेक्सिव रे हमें ऑलवेज करना वाला सिंगल एलिमेंट लेट ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर इट रियल नंबर अछि दिस लो रियल नंबर तो मते प्रूफ करियर अछि ए इज रिलेटेड टू ए तो तमने a minus a is an integer एमटी तो हमको जानना चाहिए a minus a equal 0 हो 0 is an integer तो तुम स्टार्ट करिबो a minus a तो this equal to 0 और 0 is an integer so this implies a comma a belongs to the relation अछि for all a belongs to real number it a real number it a relation so r is reflexive the relation is reflexive देन हमें प्रूफ करिबा सिमेट्रिक तो सिमेट्रिक रे टू एलिमेंट्स चूज करिबा a एंड b बिलोंग्स टू द रिलेशन तो हमें स्टार्ट करिबा a रिलेटेड टू b देन प्रूफ करिबा b रिलेटेड टू a तो a comma b belongs to relation तो दिस implies a minus b is an integer तो implies that minus common लेने के लिए b minus a is an integer. Minus of b minus a integer means b minus a is also an integer. तो ये भी एक integer है जी ना. So this implies b comma a belongs to relation for all a b belongs to this one real number. It a real number. It a relation. तो symmetrical condition satisfied होला. So it is symmetric. So R is symmetric. Then transitive
तो ट्रांजिटिव रे हमें 3 एलिमेंट्स यूज करिया लेट a b c belongs to real number the real number अछि तो a related to b then b related to a कंसीडर करियो प्रूफ कर दो a related to c तो a comma b belongs to r so this implies a minus b is an integer then b comma c belongs to r choose करियो this implies b minus c is an integer a minus b integer b minus c integer the sum of two integers be integers therefore a minus b plus b minus c is an integer तो b b plus minus अच्छे cancel है जीवो this implies a minus c is an integer तो this implies a comma c belongs to relation for all a b c belongs to real number it a real number a relation तो a b belongs to r अच्छी b c belongs to r अच्छी proof है गला a c belongs to r so r is transitive तो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रूफ है गला सिमेट्रिक प्रूफ है गला ट्रांजिटिव प्रूफ है गला hence R is an equivalence relation तो हम फर्स्ट पार्ट प्रूफ है गला इक्विवेलेंस रिलेशन नाउ अब हमें सेकंड पार्ट का सॉल्व करिवा फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 and 1/2 with respect to this relation तो हमें a minus b is an integer a condition यूज करेगी मतलब इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 फाइंड करियर अछि और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1/2 भी फाइंड करियर अछि तो सेकंड पार्ट में फाइंड करिवा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 and 1/2 with respect to this relation तो हम रिलेशन गिवन देछि a minus b is an integer let x belongs to real number such that x minus 1 x comma 1 belongs to relation so x comma 1 belongs to relation means x minus 1 is an integer तो मैं यूज कर ली गिवन कंडीशन a related to b माने ab belongs to r माने a minus b is an integer तो x1 belongs to r अच्छी मैंने definitely x minus 1 is an integer so this implies x minus 1 belongs to z so this implies x minus 1 equal to n यूज करिए और where n belongs to z so this implies मतलब x रा वैल्यू मिलला n plus 1 और where n belongs to z therefore equivalence class of 1 equal to तो तुम्हें यूज करिए x it यूज करते हैं तो n plus 1 यूज करिए such that n belongs to z और तुम्हें सिंपली या को डायरेक्ट z यूज कर ले भी किसी प्रॉब्लम हबो नहीं कहना n z अछि तो n plus 1 भी z अछि तो हमें डायरेक्ट सिंपल z भी यूज करि परिबा तो मते इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 मिलियला एग्जैक्टली सेम थी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ मते हाफ भी फाइंड करियर अछि let x belongs to r such that x comma half belongs to relation so this implies x minus half is an integer तो मैं ऑलवेज करना गिवन कंडीशन यूज करती हूँ a related to b a minus b is an integer x comma half x related to half अच्छी तो x minus half is an integer so this implies x minus half belongs to z so implies that x minus half equal to n यूज कर ली और where n belongs to z so this implies x equal to n plus half असीवा such that n belongs to z तो हमारा x रा वैल्यू मिली गला n plus half therefore 1/2 रो इक्विवेलेंस क्लास equal to n plus half यूज करिवा such that n belongs to z ला आंसर